Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Very good evening to all of you. Audio video clear? Piyush, Shiba, Ashwini, Rabi, Jai Jagannath. Audio video clear? Kindly comment in the comment section. Good evening, Ankita, Shiba. Good evening. All clear, Ankita. Thank you. Hello and welcome to Ada 24/7. As you all know, I am Professor Abhishek Tripathi, teaching live for Ada 24/7 in the series of classes that we have been taking for RI, SI and ASO exams 2021. We have launched Superstar English Test and Discussion Batch, and this is the 15th class of the series. Those who have missed the earlier classes can watch the recorded versions. Quickly coming to the word of the day. आज ही वर्ड ऑफ द डे होची. आज का वर्ड ऑफ द डे है टॉर्पर. TORPOR. टॉर्पर इज समथिंग which is connected with lethargy, sluggishness. It is connected with lethargy or sluggishness. Usually you can denote. Usually हम किसको डिनोट कर सकते हैं? Usually हम डिनोट कर सकते हैं मेंटल या फिजिकल लेथर्जी को. मेंटल या फिजिकल लेथर्जी को हम डिनोट कर सकते हैं टॉर्पर से. अच्छा, प्लीज रिमेंबर, टॉर्पर इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉर्पिड. टॉर्पिड में मतलब बहुत स्लो, बहुत एपैथेटिक. इट इज बोथ स्लो एंड एपैथेटिक. सो इट इज वेरी इनएक्टिव, इट इज वेरी डॉजी. स्लीप में जो जाता है उससे हम टॉर्पर या टॉर्पिड कहते हैं. मतलब मेंटल इनर्शिया है जो आपको कोई चीज से बाहर नहीं आने देता. For example, you must have seen many people, they want to prepare for competitive exams, but they cannot come out of their comfort zone. तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं? We can also say they are torpor or torpid. Please remember, please differentiate this word from torpitude. These are very similar words. There is one word called torbid. Turbid मतलब बहुत opaque, बहुत muddy, कुछ दिख नहीं रहा. टर्बिड, इट इज नॉट क्लियर. यूजुअली सॉल्यूशंस जो होते हैं केमिस्ट्री में, लिक्विड्स जो होते हैं, उसमें सेडिमेंट्स जब मिला देते हो आप, तब क्या होता है? वो टॉर्बिड हो जाता है. TUR वाला. इट इज मडी, इट इज मर्की, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मर्की, यू कैन राइट MUR ऑल्सो, एंड देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड MIRK ऑल्सो. बोथ यू कैन यूज हियर. ठीक है, यहां से वर्ड आता है टॉर्बिडिटी. बट प्लीज डिफरेंशिएट दिस वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड, वेरी सिमिलर साउंडिंग वर्ड, विच इज नोन एज टॉर्पिट्यूड. टॉर्पिट्यूड मतलब करप्ट है, डिप्रेविटी है. इट इज अ वेरी हायर डिग्री. देखो, टॉर्पर नेगेटिव तो है ही, बट टॉर्पिट्यूड इज हाई नेगेटिव. इट इज हाई नेगेटिव. मेंटल डिप्रेविटी, इट इज समथिंग विच इज associated with mental depravity. For example, लोगों को torture करना can be a torpitude, or you can get fun out of trying to put people in danger. आप उनके साथ इस तरह के प्रैंक खेलते हो कि वो डेंजर में आ जाए,
तो that is also turpitude. It is a very degenerative act. It is a very depraved act of depravity or corrupt act. तो torpor से higher degree जो है turpitude है. So you should remember all this word out here. Lethargy, sluggishness, apathetic, slow, dodgy, turbid के ये मीनिंग से turbid is a liquid जो sediments उसमें क्योंकि घुल जाते हैं. So it is not very clear. It is murky, muddy, it is opaque, it is murky, and you should differentiate this from a mental act of mental depravity which is known as turpitude. Hope the point is clear, loud and clear. All good? Good evening everyone. Let's make English easy. In the process to make English easy, the Utsav preparation is on, where you get 77% discount plus additional 1% discount if you log in through the app or register through the app using coins. Don't forget to use code Y292. I repeat, use code Y292, and there is a blockbuster offer on test series. You just add an S for student, so you will not get 77%, but you will get flat 80% off. We have launched a Zero to Hero batch consisting of 140 hours of live classes. If you are preparing for SI, RI, ASO, Bank, SSC, OPSC, UPSC, CAT, CLAT, OJS, any exam that you are preparing for, even including GRE, GMAT, TOEFL, any exam that you are preparing for, this is a course which is self-sufficient. This is a complete course in itself. It consists of 140 hours plus of live classes covering all your traditional areas such as reading comprehension, sentence arrangement, rearrangement, close test, double filler, grammar, vocab. Apart from this, we will cover all your new pattern questions such as connector questions, out of context questions, logical reasoning questions, odd one out questions, 2+ filler questions. And to top up, we will also discuss in detail descriptive writing, how to write an essay on a given topic with limited knowledge. That is the art of writing. So, and the course is only 670 rupees. Enroll for it today. Use code Y292. There is a complimentary batch along with it, the superstar batch of test and discussion. What we learn in the Zero to Hero English batch, जो भी हम पढ़ेंगे Zero to Hero English batch में, उसको practice करेंगे along with live discussion classes. And this with festive offer is only 593 rupees, and code remains the same, Y292. There is a double validity offer going on, so don't wait. This is applicable for all exams, as this is the complimentary और this is the counterpart of Zero to Hero. वहां से आप हीरो बन के निकलोगे, यहां पे आप सुपरस्टार या रजनीकांत बनोगे. व्याख्या, you are a new student. All good? बैंक या एसएससी कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस के सवाल, इस तरह के जवाब आप YouTube सेशंस में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो. I have taken 10 classes on career counseling in which I have discussed in detail कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी करना, what are the benefits of it. Similarly, what are the benefits of preparing for SSC exams. Udiya Mahapack you can purchase for 3290 and upgrade for 2499. Price hike होने वाला है. Pratigya batch for Odisha Police SI, Vidwan batch targeting revenue inspectors, Abhipsa batch targeting Secretariat OS, ASO, and Sadhana batch targeting ARI and Amin, Sankar batch targeting Odisha Police Constable. These are the batches that are running and running smoothly, successfully. So those who have not purchased, they should purchase now itself. Maha offer is going on. There are lots of good news coming. All vacancies, all exams that you have been waiting for are all on the cards now. So don't wait. Enroll for it today itself. So जिनको भी कैरियर काउंसलिंग के कोई भी क्लास किसी भी चीज में डाउट है, they should attend. I have taken 10 YouTube sessions on which exam to appear depending on your strengths and weaknesses. Already, here goes the first question. It doesn't matter, Miraj, if you are from Pakistan or if you are from America, it doesn't matter. Courses are now online. So you can just log into the stores, type Zero to Hero, you will get the batch, subscribe, use the code, sufficient. Question number 1.
The government is not taking pain to alleviate poverty. All good. The government is not taking pain to alleviate poverty. Question number 1 on your screens now. Jognath is saying B. Whenever you comment in the YT session, please comment with the question number. So if there is a lag, we will be absolutely sure which is the part that we are talking about. Atul is saying E, no error. Come on, fast, fast. Captain C, Arun B, Sakti, no error. The government is not taking pain. Please remember, pain when used in the singular form will mean sufferings. When used in the singular form will mean suffering or the pain that we encounter, that we suffer from. And when we use it in the plural, that is, we use it as a pains, that means the government is not making effort. The government is not making any effort. So therefore, here pain will be replaced by the plural form pains. If you say, I have a back pain, I have a pain in the back, or I have a pain in my legs. So pain here would mean suffering. The pain that we encounter, that we generally talk about, it is the pain balm which will soothe the pain. But here it is talking about efforts. So therefore the plural form must be used. The right answer is pain must be replaced by pains. So therefore the right answer is C. All clear? Thumbs up. Question number 1, answer C. Good evening, Ram Kumar. Question number 2 on your screens now. Our legal system is soft towards criminals but is unfriendly towards victims. All good. निहार द्वितीय कमेंट करते रहो फास्ट. रश्मि रंजन साहू, ऑल गुड. ललाट शिवा इंद्रजीत, राम राम. मिस्टर चित्ती सिंह डी, अरुण बी, रश्मि रंजन डी, अरुण बी, जितेंद्र सी. It would be very nice if you can tell me what is the error as well. That will show clarity. Error भी बताते रहो साथ के साथ. अगर error भी बता सकते हो, there is nothing like it. Hello, Spy Gaming. Yashir, hello. Our legal system is soft towards criminals. Legal system बहुत flexible है, बहुत soft है, strict नहीं है, but is unfriendly towards victims. Legal system soft होना criminals की तरफ. If it is being soft towards criminals, is it a positive thing or a negative thing? Definitely it is a negative thing. Our legal system is soft towards criminals but is unfriendly towards victims. If it is friendly towards victims, then it is a positive thing. If it is unfriendly, जिनके साथ victims मतलब कौन हो गए? जिनके साथ बुरा हुआ है, जो सफर कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप unfriendly रहोगे, so therefore the whole connotation is negative. So two parts of the sentences are connected by a direction changer word, that is but, which is incorrect. First replace this but by and. That is the first error. Our legal system, because we are talking about two things occurring in the same direction, you do not need a direction changer word. Our legal system is soft towards criminals and is unfriendly towards victims. अच्छा, अगर and करते हैं फिर सेंटेंस सही है? नहीं, फिर भी सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी एक एरर है, and that error is that of redundancy. Our legal system is used for both the things. So therefore this verb is used
for both being soft towards criminals and being unfriendly towards victims. So we do not need this is. So therefore the right answer would be our legal system is soft towards criminals and unfriendly towards victim is the perfectly correct sentence as it is. So therefore दो errors है इस sentence में, एक तो B में error है but should be changed to and or any same directional word, and this is absolutely redundant. So you have to go with the first error. So first error is B. So the right answer is B, not C. All correct. Do thumbs up. Tokotali. Question number 3. All good. Very good. Question number 3. The herd of elephant have ruined our paddy. Bilkul Rabi, first error. Always go with the first error. Then I have already told you to give higher preference to grammatical errors over and above usage errors. The herd of elephant have ruined our paddy. Arun is saying C. Aditya C. Abhishek B. Shubhangini C. Jitendra B. Sakti C. Atul B. So there seems to be a confusion between B and C. Let us go to the let us look at the question carefully. The herd of, I have told you time and again, English construction में जब भी आप of the form लगाओगे, of का form जब भी लगाओगे, the subject is always in a plural. One of the students, many of the students, each of the students, neither of the students, some of the students. तो जब भी आप काउंटेबल फॉर्म में लगाओगे तो आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा. हां, जब अनकाउंटेबल होगा, सम ऑफ द वाटर या मेनी ऑफ द लैंड is unoccupied, but that is a very different concept. So first thing is you have to use plural if it is countable, and elephant is plural. So therefore the first error is elephant should be turned to elephants, and the second error is it is talking about a herd, that is a collective noun taken as a group. It is a collective noun taken as a group. So therefore the second error is have should be replaced by has. So this question basically has two errors. The herd of elephants has ruined our paddy. Yes, error B में भी है और C में भी है, but you have to go with the first error. So therefore the right answer is B. All good? Correct. Question number 4. Sir, I can't get enrollment in English classes and grammar and mainly for descriptive like essay. Who told you so, Miraj? You definitely can. Therefore, we have launched the 0 to Hero English batch, which is a comprehensive batch covering all your grammar and descriptive needs. Absolutely, Atul. Herd of elephants has. Absolutely. Thumbs up, thumbs up. Don't forget to like the session immediately. एकदम immediately. ठोको ताली, thumbs up दे दो. Session को एक बार जल्दी से like कर दो. In any case, an ordinary member of the Lok Sabha can move on notice of no confidence when House is in session. Kindly comment. Mosme good. Question number 4 on your screens now. In any case, download the ADA 24/7 app. Miraj, so simple. Mariners is saying hey, Jitender D, Subhangini D. In any case, an ordinary member of the Lok Sabha can move a notice of no confidence when House is in session. No, it is talking about a specific house. So when the House is in session, you need the definite article the before house. You need the definite article the before the house. Point clear. The question is talking about a particular house. Question is talking about a
particular house. So therefore you need the definite article the before the house. So therefore the error is in part D. All clear? Yes, no, maybe. All good? बिल्कुल द हाउस होगा. क्वेश्चन नंबर 5. Once appointed by the president, the council of ministers are responsible to the house. Thumbs up de do aaram se. Don't forget to like the session immediately. Share the link with your friends so that more and more students can benefit from the session. We meet on Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 10:30 p.m. Students from Odisha, those who have not subscribed to the Odia channel, can immediately do so. The link is provided in the description box. And on the Odia channel, we will have sessions on Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays at 6 p.m. And on Sunday, that is tomorrow, we will have an additional session at 3 p.m. in which we will discuss generic questions or about preparations, strategies, how to clear competitive exams. Shiba is saying C, Babatosh C, Soumya C, Ankita C. Many are saying C. Once appointed by the president, the council of ministers. Now the council of ministers is a group. So therefore the same question like herd of elephants. So council of minister or ministers, ministers. And since it is a group, he is responsible to the house. Absolutely correct. Right answer is C. All good. Question number 6. The time has come for policymakers in India to understand the damage which is caused as a result of a vast gap in perception and reality. All good. Question number 6. Don't forget to like the session immediately. The time has come for policymakers in India to understand the damage which is caused as a result of a vast gap in perception and reality. Abhishek is saying A, Mariner A. Shubhangini A, Manini A. Many are saying A. What is the error in A? No. The time has come for policymakers. It is talking about policymakers in general. You don't need the definite article the. The time has come for policymakers in India to understand the damage. The time has come. So therefore, the damage is an ongoing action. So you change is to has been. The time has come for policy because you need consistency of tense. So therefore, क्या करना है आपको? The time has come for the policymakers. You don't need it. The time has come क्योंकि एक particular time की बात कर रहा है और policymakers in general भी बोल सकता है. In India, policymakers in India. It is not talking. अगर मैं यहां पे ये बोलता, the policymakers who are in charge of formulating the anti-sedition law. So अब इस तरह की बात मैं करता कि anti-sedition law पे जो policymakers हैं, then you need the definite article the. Here we can talk about a lot of policies that are being formulated in India. It could relate to sedition law. It could relate it to national registers of citizens. It could relate to farmers agitation, etc. etc. So therefore यहाँ पे policy makers की जो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे in general terms में बात कर रहे हैं. So you don't need the definite article the. The time has come for policymakers in India to understand the damage
which has been caused, लेकिन सेंटेंस का टेंस कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, बिकॉज अभी भी डैमेज चला जा रहा है, which has been caused as a result of a vast gap in perception and reality. Therefore, the right answer is C. All good. Thumbs up. सही है तो thumbs up दे दो. All good. Very good. Let us go to question number 7. Fast. The perception of security held by the power elites tend to ignore the basic reality that contradictions of civil society has grown since nuclear explosion. Don't forget to like the session immediately or thumbs up भी immediately दे देना. The perception of security held by the power elites tend to ignore the basic reality that contradictions of civil society has grown since a nuclear explosion. All good. Ranga is saying D. Shakti D. Comment in the comment section. Abhishek D. Jitendra is saying hold. Captain D. Let us see. The perception of security held by the power elites. Please remember, this is an error that you are committing time and again. बार बार सेम एरर कमिट मत करो. क्वेश्चंस बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द पावर एलिट्स. सब्जेक्ट आपका पावर एलिट्स अभी भी नहीं है, सब्जेक्ट आपका है परसेप्शन. परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द पावर एलिट्स टेंड्स टू इग्नोर द बेसिक रियलिटी दैट कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी. अब सब्जेक्ट क्या है? कॉन्ट्राडिक्शंस of civil society have grown since nuclear explosion. All good. The perception of security. बिल्कुल रंगा प्लूरल और ing होता परसेप्शन के बाद, लेकिन यहां पे सिक्योरिटी यूज्ड है which is uncountable. ऑफ फॉर्म में बिल्कुल होता, बट यहां पे क्या है? परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द पावर एलिट्स टेंड्स टू इग्नोर, क्योंकि अभी भी सब्जेक्ट क्या है? परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी है विच इज अ सिंगुलर. सो सिंगुलर के लिए टेंस लगेगा, वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ. इग्नोर द बेसिक रियलिटी दैट कॉन्ट्राडिक्शंस, और कॉन्ट्राडिक्शंस इज द सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट वर्ब. द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी हैव ग्रोन. कॉन्ट्राडिक्शन होता तो हैज होता, कॉन्ट्राडिक्शंस हैव ग्रोन. So therefore, there are two errors in this sentence. The first error is in C and the second in D, and both are grammatical in nature. So therefore, you have to go with the first error, that is C. All good? Thumbs up. Don't forget to like the session immediately. Since 2 days, I have not taken the breakfast but dinner. Read the direction carefully. Find which of the following part or parts has or have error in it. You have to find the right combination. All good? Composition, very good. Clear? Very good. Excellent. Since 2 days, I have not taken the breakfast but dinner. Composition saying A. Aditya B. All good? Many are saying B, some are saying C. Let us look at the question carefully. Since 2 days, see, 2 days is actually a period of time. If I say since the last 2 days,
then you can use since. Else you must change since into for 2 days or since the last 2 days, and contextually you should use since the last 2 days, or you can say for 2 days I have not taken. 2 दिन, last 2 दिन से नहीं लिया या 2 दिन तक नहीं लिया. So either you use for 2 days because it is only a duration of time, or you say since the last 2 days. क्योंकि since कब यूज होता है? जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ हो और ऑनगोइंग एक्शन हो. सो देयरफॉर एरर ए में भी है. आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट, और आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल ब्रेकफास्ट या मील से पहले बिल्कुल नहीं लगता. डेफिनेट आर्टिकल कब लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल तब लगेगा अगर एडजेक्टिव होता. आई हैव नॉट टेकन द लैविश ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन द अर्ली ब्रेकफास्ट. अगर कोई एडजेक्टिव आप लगा दोगे यहां पे तो द इज करेक्ट, but otherwise you cannot use the before the names of meals. So therefore, since 2 days I have not taken breakfast but dinner. Since 2 days I have not taken breakfast but dinner. Is but correct? This is my question. देखो ए में तो एरर है ही, ए में एरर है ही, सी में भी एरर है. क्यों? द ओमिट होगा. इज देयर एन एरर बाय यूजिंग बट? दैट इज माई क्वेश्चन. एब्सोल्युटली शुभम, यू आर करेक्ट. इसने क्या नहीं खाया? इसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया. डिनर. बट देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. बट यूज होगा या एंड यूज होगा, दैट इज द होल पॉइंट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ए में तो एरर है ही है, बी में, सी में भी एरर है. द विल बी ओमिटेड. सिंस द लास्ट 2 days इज बट करेक्ट और रॉन्ग? माई क्वेश्चन इज, अब बट यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर बट यूज कर सकते हो तो एरर है आपका ई, और अगर नहीं कर सकते हो तो आंसर होगा ए एंड सी. दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन. लुक एट इट केयरफुली. सिंस 2 days, सिंस द लास्ट 2 days आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट बट डिनर. एक चीज याद रखना, आज बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना. बट कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्शन चेंजर एंड बट कैन बी यूज्ड एज ओनली. बट 2 तरह से यूज हो सकता है. या तो डायरेक्शन चेंजर के हिसाब से यूज हो सकता है. इट इज रेनिंग बट आई वेंट आउट. I am studying really hard, but I did not clear the exam. यहां पे स्टडी कर रहे हो हार्ड बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए बट यूज होता है. बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ओनली. आई हैव नॉट गॉन आउट सिंस 5 AM बट वंस. ये लिख सकते हो. आई हैव नॉट गॉन आउट, या ये लिख सकते हो आई हैव नॉट लेफ्ट माई स्टडी टेबल सिंस 5 AM इन द मॉर्निंग बट वंस. इसका मतलब क्या हुआ? ओनली वंस. एक बार ही मैं उठ के गया, बार बार नहीं गया. सो बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ओनली. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंस 2 days आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट बट डिनर. इसका मतलब क्या आया? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है लेकिन मैंने डिनर ले लिया है. आई हैव टेकन ओनली डिनर. मतलब 2 दिन से मैं ब्रेकफास्ट तो स्किप कर रहा हूं लेकिन डिनर में ले रहा हूं. अगर मैं एंड लगाता हूं तो मीनिंग चेंज हो रहा है. एंड लगाऊंगा तो क्या मीनिंग आएगा कि 2 दिन से मैं ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों ले रहा हूं.
नाउ कम बैक टू प्रायोरिटी रूल्स ऑफ एरर करेक्शन. प्रायोरिटी रूल्स ऑफ एरर करेक्शन आपको क्या कहता है? अज्यूम द सेंटेंस टू बी करेक्ट एज इट इज. तो इसका मतलब क्या है? करेक्ट सेंटेंस को चेंज करके हमें करेक्ट नहीं करना. कहने का मतलब अगर बट रहेगा तो उसका मीनिंग अलग आएगा, एंड लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग आएगा. वाई टू चेंज बट इनटू एंड? वी डोंट नीड टू चेंज बट इनटू एंड, क्योंकि इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. गिवन सेंटेंस ये कहना चाह रहा है 2 दिन से उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया लेकिन डिनर किया है. सो देयरफॉर डी में एरर नहीं है. सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज. सो देयरफॉर द एरर इज इन ए एंड सी. राइट आंसर ऑप्शन इज बी, नॉट ई. क्लियर? ऑल गुड? 2 थम्स अप. नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, वरना थम्स अप दे देना. 2 ऑप्शन है आपके पास. नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है. कैनॉट डिसाइड नहीं है. ऑल गुड? ए एंड सी एब्सोल्युटली. एंड अगर एंड लगा था तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन मीनिंग अलग आता. करेक्ट? गो टू क्वेश्चन नंबर 9. नो कंपोजिशन. यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव वाला यूज नहीं हो रहा बट का. ऑल गुड? गो टू क्वेश्चन नंबर 9. एनी कोएलिशन विच कंटेन्स मिस जयललिता एज अ मेजर अलाई एंड मिस ममता एज अ माइनर पार्टनर डू नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट. उनको आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है. बट नॉट फॉलो, नॉट यस और नो. क्वेश्चन समझ में नहीं आया रंगा? देखो, बट 2 तरह से यूज हो सकता है. या तो आप यूज कर सकते हो ओनली के लिए. आई विल टेल यू ऑल द आंसर्स बट क्वेश्चन नंबर 9. इसका मतलब क्या है? मैं सारे आंसर्स आपको बताऊंगा, ओनली क्वेश्चन नंबर 9 का नहीं बताऊंगा. दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड. बट इतना याद रखो, बट डायरेक्शन चेंजर के हिसाब से भी यूज हो सकता है और बट ओनली के सेंस में भी यूज हो सकता है. आई विल नॉट टेक टी बट इन द मॉर्निंग. इसका मतलब क्या है? मैं टी नहीं पीऊंगा, सिर्फ एक बार पीऊंगा, और वो सुबह ही पीऊंगा, सिर्फ सुबह की चाय लूंगा. इस तरह से यूज हो सकता है. चंद्रलेखा, अंकिता, शिव, जितेंद्र, रंगा, नाइट, अभिषेक, चिन्मय, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. एनी कोएलिशन विच कंटेन्स मिस जयललिता एज अ मेजर अलाई. अगर जयललिता मेजर अलाई होती है एंड मिस ममता एज अ माइनर पार्टनर, अगर ममता माइनर पार्टनर होती है तो अभी भी सब्जेक्ट आपका क्या है? कोएलिशन है. कोएलिशंस होता तो डू होता, तो इसके साथ वर्ब एग्री करेगा. सिंपल क्वेश्चन. तो यहां पे क्या होगा? डज नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट. मतलब यह अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट है. Any coalition which contains Miss Jayalalitha as a major ally and Miss Mamta as a minor partner. आप ये मत समझ लेना कि 2 चीजें एंड से कनेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब वर्ब जो है आपका प्लूरल होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपका सब्जेक्ट जो है कोएलिशन है. सो द राइट आंसर इज डज नॉट. एब्सोल्युटली करेक्ट. द एरर इज इन पार्ट डी. 2 थम्स अप. Yes, do it. You don't think do is plural, Ranga. Do is actually plural. प्रेजेंट टेंस में जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब करते हो तो इन्वर्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब. मतलब आपका वर्ब एस अगर लेता है तो नाउन एस हटाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज, दे गो, वी गो. प्लूरल में हट गया और सिंगुलर में ले गया एस. सिंपल. The bus ride to Lahore went smoothly and so did the cricket match. 2 चीजें बहुत स्मूथली चली गई. The bus ride to Lahore went smoothly. Some are saying C, Govardhan C. Some are saying B, Maleshwar, Kiran B. The bus ride to Lahore went smoothly. बस राइड कैसे स्मूथली जा सकते? बस राइड कहीं नहीं जा रहा, पर्सन जा रहा है. बस राइड थोड़ी जा सकता है.
राइड कहीं नहीं जा रहा. वेंट इज नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज वेंट ऑफ स्मूथली. ठीक ठाक चला गया. द राइट फ्रेजल यूज इज वेंट ऑफ. द बस राइड टू लाहौर वेंट स्मूथली. राइड नहीं जा रहा, लोग जा रहे हैं. अक्षय वेंट समवेयर. राइड कैसे स्मूथली जाएगा? राइड स्मूथली नहीं जा सकता. तो द बस राइड वेंट ऑफ. वेंट ऑफ मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया. एंड सो डिड द क्रिकेट मैच. सो देयरफॉर द राइट आंसर इज बी. होपफुली द पॉइंट इज क्लियर. नो, यू डोंट नीड टू रिमूव एंड. सब्यसाची द बस, ये दो चीजों के बारे में बात कर रहा है. बस राइड टू लाहौर और क्रिकेट मैच. Rest of the sentence is correct as it is. The bus ride to Lahore went off smoothly. Phrasal use जो किया हुआ है वो incorrect है, बाकी सब कुछ सही है. Thumbs up. All good. Quick reminder of preparation. Utsav with double validity offer, 77% off plus additional 1% off if you use the code Y292 on all products. Blockbuster offer on test series, 80% off. You just need to add an S at the end of the code Y292S. We have launched a 0 to Hero English batch. Quick reminder, comprehensive batch for all your competitive exams and otherwise. अगर आपको सिर्फ इंग्लिश भी इंप्रूव करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप नहीं भी कर रहे हो, देन ऑल्सो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू. 140 hours plus of live classes covering all your traditional areas, new pattern questions and descriptive writing. After using code it is and coins which is available in the app, it is 670 rupees, and the batch which is complementary to it, the superstar test and discussion batch, is only for 593 rupees. use code Y292. मुझे भूल जाना, कोड मत भूलना, बार बार बता रहा हूं, तब आप रजनीकांत बनोगे. ठीक है, सुपरस्टार बनोगे. किस चीज का? इंग्लिश का. ऑल गुड. उड़ीसा स्टेट महापैक, यूज कोड Y292. You can get it for 3290. It will cover all your ongoing batches plus all your batches which are launched in the coming 2 years along with your test series. And those who have already taken any batch can upgrade by paying 2499. Price hike हो सकता है. Enroll immediately. Question number 11. कल हम vocab नहीं कर पाए थे, आज vocab पे आ जाओ. क्यों, जब मैं बता रहा था तो बच्चे निकल गए, टाइम भी हो गया था, 1 मिनट बचा था शायद. चूज द बेस्ट डेफिनेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंप्लीकेट. इंप्लीकेट के दो मीनिंग्स हैं. इंप्लीकेट मतलब किसी को अलेज करना, चार्ज करना, एक्यूज करना, किसी को इंक्रिमिनेट करना. और इंप्लीकेट का मतलब इंप्लाइड से भी आता है, इंप्लिसिट से भी आता है. नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट इट कन्वेज मीनिंग. एंटेल करता है, इंसिन्यूएट करता है, हिंट करता है, इंसिन्यूएट करता है. दीज आर ऑल सिमिलर मीनिंग्स टू implicate. So therefore implicate would be to convey meaning. So the right answer is B. Point clear. Thumbs up. Here goes the next question. और लास्ट में बताना मुझे कितने करेक्ट किए आप लोगों ने. बिल्कुल implicate is B. Next question is jaundice. Jaundice. Next word is jaundice. जॉन्डिस एक तो आपका डिजीज वाला जॉन्डिस हो गया, जिसमें स्किन वगैरह, आईज वगैरह और नाखून वगैरह सारे येलो हो जाते हैं. एक तो वो डिजीज वाला जॉन्डिस हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन वाला, ठीक है. इसके सिमिलर वर्ड आप एक याद रख लो, इट इज आइक्टेरस. ICTERUS. इक्टेरस और आइक्टेरस जैसे भी प्रोनाउंस करोगे. अमेरिकन और ब्रिटिश का थोड़ा सा डिफरेंट है. यू कैन प्रोनाउंस दिस एज आइक्टेरस और इक्टेरस. ये तो एक डिजीज वाला हो गया. सेकेंड जॉन्डिस का मतलब क्या है? इट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड. बोथ आर नेगेटिव. बिटर मैनरे.
रफ मैनर है, इस तरह से जिस तरह से एसर्बिटी है, एक्रीमोनियस मैनर है, एक्रीमोनियस है, राइट वर्ड इज एक्रीमोनियस, एसर्बिटी, बिटरनेस, रफ, इट इज टार्टनेस, TART, मुफट, इट इज थॉर्निनेस, ऐसे बात करोगे कि दिल को चुभ जाए, इट इज थॉर्निनेस, थॉर्न मतलब कांटे, वहां से वर्ड आया, थॉर्निनेस, बिटरनेस, एक्रीमोनियस, एसर्बिटी, टार्टनेस, टार्टनेस मतलब मुंह पे बोल दिया, मुफट हो गए आप, ठीक है। तो नाउ अब देखो डिजीज वाला तो कहीं है नहीं यहां पे मीनिंग, सो इज इट बायस, इज इट बायस, नो, इज इट ओपननेस, नो, इज इट ऑब्सेशन, नो। सो यहां पे जॉन्डिस क्या होगा, डिजीज से सिमिलर वाला होगा, सो देयरफॉर द राइट आंसर इज बी। होप द पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है, राइट आंसर इज बी, 2 thumbs up। हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल गुड, वीकनेस, बिल्कुल रविकांत, वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pontificate, PONTIFICATE, next word is pontificate, PONTIFICATE। पॉन्टिफिकेट का मतलब क्या है, आप एक ओल्ड स्कूल की तरह बात करते हो, डॉगमेटिक वे में बात करते हो, ऑर्थोडॉक्स वे में बात करते हो, या पॉम्पस मैनर में बात करते हो। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, हाउ कंसर्न दे आर अबाउट इंटरकास्ट मैरिजेस। अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें तो वो बिल्कुल वो ओल्ड स्कूल वाले हैं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम कास्ट में ही मैरिज करना चाहिए, इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट दे आर वेरी डॉगमेटिक अबाउट, दे आर वेरी ट्रेडिशनल अबाउट, ऑर्थोडॉक्स अबाउट, ओल्ड स्कूल वे में बात करते हैं, और पॉम्पस वे में इस तरह से, पॉम्पस क्यों, इस तरह से बात करते हैं कि, इस तरह से बात करते हैं कि दिस इज एक्चुअली करेक्ट। हो सकता है वो किसी भी लॉजिक या रीजन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो वहां से वर्ड आया आपका पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट। तो स्पीक पॉम्पसली, रखो इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, पॉन्टिफिकेट मतलब चर्च से ये वर्ड आया है। क्यों चर्च से वर्ड आया, क्रिश्चियन रिलीजियन से ये वर्ड आया हुआ है। मतलब आप किसी भी, पहले क्या होते थे, एक पॉन्टिफिकल ऑफिशियल अपॉइंट होता था जो इस तरह के मैटर्स पे जजमेंट देता था, तो वहां से ये वर्ड आया है पॉन्टिफिकल, तो चर्च से आया है। सिमिलर वर्ड आपका हो गया पेपेसी, PAPACY, तो ऑफिशियली अपॉइंट करना। अच्छा देखो, ऑफिशियली अपॉइंट करना इज इनकम्प्लीट। ऑफिशियली अगर मैं बोलता अपॉइंट करना एंड अ पर्सन टू एडमिनिस्टर इन अ चर्च, या इस तरह से कोई चर्च वाला वर्ड रहता तो मैं कंसीडर भी करता, तो ये वाला तो हटाओ। डिस्क्राइब ब्रीफली, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैप्चर रैंडमली, पॉन्टिफिकेट मतलब कैप्चर रैंडमली, नो, इनकरेक्ट। सो राइट आंसर आपका हो गया 14 का ए। सो पॉन्टिफिकेट करना मतलब डॉगमेटिक या पॉम्पस वे में बात करना, करेक्ट। सो देयरफॉर द राइट आंसर इज ए। गो टू क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे देना एक बार। मनोज करेक्ट, थम्स अप दे देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया बिलियस, BILIOUS। आपको पता है एक वर्ड होता है बाइल। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है। तो लीवर डिसऑर्डर जब होता है तो क्या होता है, बाइल सिक्रीशन में अफेक्ट होता है। तो यहां से इस तरह से वर्ड, बाइल से ही वर्ड आया आपका बिलियस, वहां से वर्ड आपका आया बिलियरी, वहां से वर्ड आपका आया लिवरिश। ये सारे वर्ड यहीं से कनेक्टेड है, या लिवरी,
ये भी आप कह सकते हैं लिवरिश या लिवरी। इसका मतलब कोई भी गैस्ट्रिक स्टमक डिसऑर्डर, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। अगर लीवर डिसऑर्डर होता है तो बंदा क्या होता है, अनहेल्दी है? नहीं, अनहेल्दी इल सिक देखते हैं है कि नहीं है। अगर आपका कोई भी गड़बड़ होता है, कोई भी स्टमक या गैस्ट्रिक फंक्शन में गड़बड़ होता है, तो आपका नेचर क्या होगा, आप चिड़चिड़ा आ जाओगे। तो इसीलिए यहां से वर्ड आया बिलियस का मतलब, बिलियस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव मीनिंग इल नेचर्ड, irritable. It can also be used to signify irritable, ill-natured, ill-natured. Correct? तो अब देखते हैं यहां पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। इज इट अनहेल्दी, एक बार रखो इसको। इज इट स्ट्रेस्ड? नो। इज इट ग्रम्पी? नो। इज इट डिप्रेस्ड? नो। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार वर्ड्स को देख लेते हैं। बिलियस क्या होगा? बिलियस मतलब हेल्दी नहीं है, सिक है, कोई हेल्दी नहीं है, तो अनहेल्दी या सिक जैसे यूज हो सकता है। क्योंकि आप दो तरह से यूज हो सकता है। अच्छा, सी वाला ग्रम्पी मतलब एनॉयड और इरिटेबल भी है, इल नेचर्ड भी है। तो अनहेल्दी और ग्रम्पी ये दो वर्ड्स आपको कंसिडर करने हैं, क्योंकि इरिटेबल की तरह भी यूज होता है और आपका इल नेचर्ड इरिटेबल भी होता है या सिक भी होता है। अब देखो यहां पे क्या है, डिसऑर्डर जो है, एक बार देख लो, विच विल बी द, क्योंकि देखो चूज द बेस्ट डेफिनेशन, दैट इज द की इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आपको बेस्ट डेफिनेशन ढूंढना है। बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? सफरिंग फ्रॉम समथिंग। अनहेल्दी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। देखो अनहेल्दी इनकरेक्ट नहीं है, इट इज इल, सिक, ये वाला भी ठीक है। ग्रम्पी मतलब इरिटेबल। अब ये दोनों वर्ड्स यूज है। अब अनहेल्दी मतलब कोई जरूरी नहीं है स्टमक डिसऑर्डर की वजह से आप अनहेल्दी हो। अगर ये यहां पे ये स्पेसिफाई करता अनहेल्दी ओइंग टू स्टमक डिसऑर्डर या ओइंग टू अ लीवर डिसऑर्डर, तो मैं ए को लेता। यहां पे मैंने ए और सी के बीच में आई हैव टू चूज द बेस्ट डेफिनेशन, सो देयरफॉर द राइट आंसर वुड बी सी। सी इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ग्रम्पी मतलब अगेन इल नेचर्ड या इरिटेबल है, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर एज बिलियस। होप द पॉइंट इज क्लियर। ए इनकरेक्ट नहीं है, अनहेल्दी है। अगर सी नहीं होता तो ए होता, या ए में अगर वो कहता कि अनहेल्दी ओइंग टू लिवर डिसऑर्डर, स्टमक डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, तो बेस्ट डेफिनेशन होता। क्वेश्चन नंबर 15 दे दो थम्स अप एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट बहुत ज्यादा भी नहीं। गो टू क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसिलिटाइज। प्रोसिलिटाइज, प्रोसिलिटाइज कैसे यूज होता है? अगर आप एक फेथ या एक रिलीजियन के लोगों को दूसरे रिलीजियन में कन्वर्ट करते हो इनटू अनदर रिलीजियन, पर्सन्स ऑफ वन फेथ और वन रिलीजियन को आप डिफरेंट रिलीजियन में कन्वर्ट करते हो, तो वो वर्ड हो गया आपका प्रोसिलिटाइज। ठीक है, तो स्पीक इन फेवर ऑफ, नो, एब्सोल्युटली नॉट। अलर्ट, डिसमिस, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तो इजी क्वेश्चन था। अटेम्प्ट टू कन्वर्ट नॉर्मली यूज होता है अगर आप एक फेथ या रिलीजियन के लोगों को दूसरे किसी भी रिलीजियन में कन्वर्ट करते हो। या इस तरह से आप कह सकते हो, मान लो, अब इस तरह से भी वर्ड यूज हो सकता है। मान लो कोई कंट्री के लिए बहुत लॉयल है, आप उसको करप्ट होने के लिए मजबूर कर देते हो। इफ यू चेंज अ लॉयल पर्सन इनटू अ करप्ट पर्सन, फिर भी ये वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, प्रोसिलिटाइज यूज हो सकता है। ये वर्ड जनरली वर्ब की तरह यूज होता है, प्रोसिलिटाइज, और नाउन आपका प्रोसिलिटाइट हो गया और प्रोसिलिटाइजर भी हो गया या प्रोसिलिटाइजेशन भी हो गया। ये तीनों नाउन फॉर्म में यूज होता है और प्रोसिलिटाइज जो है आपका वर्ब फॉर्म में यूज होता है। गो टू क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे देना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका बिसीज, BESEIG,
GE. Next word, question number 16 is besiege. BESEIGE. बिसीज करना मतलब टू गेट होल्ड अप. ये पहले तो आया एक मिलिट्री टैक्टिस की तरह. सबसे पहले ये आया एक मिलिट्री टैक्टिस की तरह, जिसमें क्या करते हैं, हम चारों तरफ से घेर लेते. प्लीज रिमेंबर, घेराव इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड. घेराव करना हिंदी से आए. घेराव मतलब चारों तरफ से उसको कवर कर लेते हो, चारों तरफ से घेर लेते हो किसी को, किसी पर्सन को या किसी यूनिट को या टेररिस्ट को आप चारों तरफ से घेर लेते हो. वहां से वर्ड आया आपका बिसीज करना. तो बिसीज जनरली मिलिट्री टैक्टिक्स से आया. सिमिलर वर्ड आपका हो गया सरकमवेंट करना. सरकम मतलब चारों तरफ और सरकमवेंट करना, चारों तरफ से घेर लेना. या हेम. हेम मतलब क्या है, आपने कभी भी कोई भी ड्रेस का हेम आपने चारों तरफ से घेरा लगा दिया, तो वहां से वर्ड आया आपका सराउंड करना, हेम करना, सरकमवेंट करना. ठीक है. अब बिसीज अगर करोगे तो आप किस इंटेंशन से करते हो. अगर आप बिसीज करोगे, इफ यू वांट टू बिसीज अ पर्सन, योर सोल इंटेंशन इज टू फ्रस्ट्रेट द पर्सन, टू अनॉय द पर्सन, टू मेक द पर्सन फील डिस्ट्रेस्ड और वरीड. तो इसीलिए इस तरह के वर्ड्स भी बिसीज यूज हो सकता है, विच इज हरास, डिप्रेस करना, वरी करना, डिस्ट्रेस करना. देखो मिलिट्री टैक्टिक्स वाला तो वर्ड कोई भी नहीं है. प्रेस तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है. बिसीज इज हरास. मिलिट्री टैक्टिक्स वाला तो कहीं है नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. स्लैंडर करना मतलब गाली गलौज करना, अब्यूज करना, विच इज अगेन नॉट द राइट वर्ड. तो राइट वर्ड क्या होगा आपका, राइट वर्ड होगा बी. सो द राइट वर्ड इज बी. होप द पॉइंट इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर. तो राइट वर्ड यहां पे आया आपका बी. सो बिसीज करना मतलब आपको हरास करना. ऑल क्लियर? दो थम्स अप. क्लियर है तो थम्स अप दे देना. इवॉल्व नहीं है कंपोजिशन, इवॉल्व नहीं है. इवॉल्व मतलब और मैच्योर्ड होना और डेवलप होना. ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है. कहते हैं इंसान का पूंछ हुआ करता था, नहीं, ये रिसर्च ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है. कैसे? 21 जनरेशन तक माउस को लिया, उसके पूंछ काट दिए. अ टेललेस माउस वाज नेवर बॉर्न. तो इसीलिए इंसान बंदर कभी भी नहीं था, चिंपैंजी लंगूर कभी भी नहीं था. इंसान ही था. ये अलग बात है, ये ऑल फोर्स में वर्क करता था, हाथ और पैर के बल पे वर्क करता था. धीरे धीरे उसका वर्टिब्रे या उसका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होता गया और वो सीधा खड़े होने लगा, वो अलग बात है. बट इंसान का कभी भी पूंछ नहीं होता था और इंसान कभी भी बंदर से नहीं आया हुआ है. दिस पॉइंट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर और रिसर्च हैज प्रूव्ड दिस ऑलरेडी. दो थम्स अप. सेशन को इमीडिएटली लाइक कर देना. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंशन. DISPENSATION. नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका डिस्पेंशन. डिस्पेंशन वर्ड आपका कहां से आया? डिस्पेंशन वर्ड आया आपका डिस्पेंस से, विच इज यूज्ड एज अ वर्ब. डिस्पेंस करना मतलब क्या? टू गिव आउट करना, छोड़ देना, देना, गिव आउट करना. इसीलिए हम कहते हैं ना कॉफी डिस्पेंसर, हम कहते हैं डिस्पेंस करेगा. एटीएम मशीन क्या करेगा? कैश को डिस्पेंस करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा या गिव आउट करेगा. या अगर एक आपने डिस्पेंस इस तरह से भी यूज हो सकता है, आपने अगर एक एक्सेप्शन किया, अगर आपने किसी चीज में, किसी रूल में एक एक्सेप्शन किया, तो भी वो डिस्पेंस की तरह यूज हो सकता है. मतलब सब हर किसी के लिए एप्लीकेबल है. एक पर्सन के लिए आपने क्या किया, इसको छूट मिल गई. ही इज गिवन द लिबर्टी. अगर आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों पे आपने ये वाला नंबर प्लेट देखा होगा, COD. COD क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी नहीं है. COD मतलब कोर ऑफ डिप्लोमेट्स. कोर ऑफ डिप्लोमेट्स मतलब जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, फर्स्ट सेक्रेटरीज हैं, उनको ये वाले गाड़ियां मिलती है. कोर ऑफ डिप्लोमेट्स कहने का मतलब उनको इम्यूनिटी होता है. एक कंट्री में उनको इम्यूनिटी होता है. देखिए, उनको लोकल पुलिस वगैरह एकदम से पकड़ नहीं सकते. उनके कई तरह के, उनके पास क्या होता है? इम्यूनिटी होता है. क्योंकि अगर नहीं होगा
तो कोई किसी भी कंट्री का एम्बेसडर किसी और कंट्री में नहीं जाएगा। इंडियन एम्बेसडर कभी पाकिस्तान में नहीं जा सकता क्योंकि तुम किसी भी केस में उसको फंसा दोगे, तो इसीलिए उनको इम्यूनिटी मिला होता है। इसी से वर्ड आया कोर ऑफ डिप्लोमेट्स। प्लीज रिमेंबर दिस इज कोर ऑफ डिप्लोमेट्स। इस तरह के नंबर प्लेट देखना गाड़ियों में होता है, सीओडी प्लेट्स, तो ये कोर ऑफ डिप्लोमेट। तो डिस्पेंस वर्ड से आपके डिस्पेंस दो मीनिंग हो गया, एक तो हो गया गिव आउट करना, और वहां से आ गया डिस्पेंशन। डिस्पेंसर मतलब गिव आउट करना, डिस्पेंशन मतलब आपका या तो लॉ से छूट मिल गया, या तो डिस्पेंशन हम जानते हैं वो भी डिस्पेंशन गिविंग आउट वाला भी हो सकता है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। डिक्लेरेशन नो, नेचुरल टेंडेंसी, अरे नेचुरल टेंडेंसी टू डू व्हाट, नहीं हो सकता। एग्जेम्पशन हां पॉसिबल है, लॉ से एग्जेम्पशन, उसको छूट मिला हुआ है, वी हैव गिवन द ऑब्लिगेशन और एग्जेम्पशन फ्रॉम अ सर्टेन रूल और लॉ। पे आउट करना मतलब पैसा देना, पे आउट करके मतलब खत्म करना। आपके जितने भी आपके लोन से ड्यूज है, आपने पे आउट कर दिया, खत्म कर दिया, दे दिया पैसा, ठीक है। वहां से इडियम आया टू पे ऑन द नेल, वहां से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आया टू पे ऑन द नेल। टू पे ऑन द नेल मतलब पहले के जमाने में आपने देखा होगा, अभी भी बहुत जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह बैंक्स में भी आपने देखा होगा, एक लंबा सा नेल लगा होता है, और आप कोई भी वाउचर है, कोई भी स्लिप है, एक बार वो उसका क्लियर हो जाता है तो क्या करते हैं, इसमें फंसाते जाते हैं, ये लंबा पेपर आता है। तो यहां से इडियम आया टू पे ऑन द नेल, मतलब स्ट्रिक्टली कैश में पे कर देना, कोई भी ड्यूज नहीं रखना, पे ऑन द नेल। यहां से इसको कनेक्ट कर लेना। सो द राइट ऑप्शन यहां पे होगा सी, एग्जेम्पशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रूल। डिस्पेंशन, क्योंकि देखो डिस्पेंसर गिव आउट, अगर टू गिव आउट होता या एक्ट ऑफ डिस्पेंसिंग होता या शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट होता, इस तरह से कुछ भी होता तो होता, बट वो मीनिंग तो है नहीं। तो दूसरा मीनिंग इस पे एप्लीकेबल है, दूसरा मीनिंग मतलब एग्जेम्पशन। होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप दे दो। क्लियर है? ऑल गुड, ऑल गुड, आई बात समझ में? थम्स अप दो एक बार क्विकली। ऑल गुड, आई बात समझ में डिस्पेंशन का? वेरी गुड। We have 3 questions remaining, but time doesn't permit us. तो कोई बात नहीं। Quick reminder: उत्सव offer with double validity, blockbuster offer for test series. Use code Y292S. 0 to Hero English batch. Please subscribe. This is a comprehensive batch for all your examination need. And also subscribe to Superstar English batch, which is the same batch for English, but this is a particularly practice batch, that is test and discussion. Starting from 20th of July, those who have not registered, do it now. You have festive offer still going on. Rath Yatra offer is still on. You can only get it for 593. Don't wait. Subscribe immediately. Odia State Mahapak you can take for, you can subscribe by paying rupees 3290, or you can upgrade by paying 2499. There may be a price hike soon. Don't wait. Pratigya batch for Odisha Police SI, Bidwan batch for RI, Abipsa batch, comprehensive batch for Secretariat ASO, Sadhna batch for ARI and Amin, Sankalp batch for Odisha Police Constable. Lakshya 2 is already running smoothly. Use code Y292. So subscribe to this batch. Use code Y292 for all your bank Mahapaks, SSC Mahapaks, Addaka Mahapak and Warrior series. Thanks a lot for watching. Follow me at ADA 24/7. Stay connected during the pandemic. Stay home and stay safe. But more importantly, stay focused and motivated. Let's make English easy. Use code Y292 for 77% discount plus additional 1% discount on the app along with double validity. All the very best. Download the app today. Your feedback is really important to us. Don't forget to share your queries in the feedback form given in the description box. Don't forget to like, comment, share and subscribe. We will keep meeting on our usual days, that is on Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 10:30 p.m. on the bank channel. We will meet on Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays on the Odia channel at 6 p.m. and we will meet on the SSC channel at 3 p.m. only on Sundays for a generic session.
Till then, bye-bye. God bless you all. Good night. Stay happy. Stay blessed. God bless you all. Signing off. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel.